climbing up now. There are a lot of monkeys here, so be careful with your belongings. And they're cute actually until they snatch your belongings. And it's around 2 kilometers from the base, the temple, the main temple on top. And get a very beautiful view of the city from here. So guys, there's an ascent first and then there's a descent. So make sure that you have shoes which gives you proper grip. So it's going to take me double the time than a normal person who's wearing a proper shoes with the grip to reach the temple down, because I'm not able to descend because it's very slippery here. So guys, after almost some half hour of descent, ascent plus descent, I finally reached this place. तो जैसे आप आते हैं आपको सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, तो वहाँ पे जाके दर्शन कर लेना। कैमरा लाने के लिए 100 रुपीज़ टिकट देना पड़ता है फॉर इंडियंस एंड इट्स 250 फॉर फॉरेन पीपल आई थिंक। एंड जब जैसे आप आते हो आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, तो आप अंदर जाके दर्शन कर लेना। फिर यहाँ पर और एक मंदिर है और फिर यहाँ से होने के बाद आप इस रूट से नीचे चले जाना। गलटा जी का मंदिर भगवान हनुमान को डेडिकेटेड है। यह जयपुर के मेन शहर से अराउंड 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मंदिर बहुत ही सुंदर सी जगह पे स्थित है जो कि अरवली हिल्स के बीचों बीच आता है। इस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज पाए जाते हैं। कहते हैं कि ऋषि गालव ने यहाँ पर 100 सालों तक तपस्या करी थी और उसके बाद उन्हें ये वरदान मिला था कि यहाँ पर कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो 7 कुंड है उनमें से सबसे बड़ा कुंड जो कि गलटा जी का कुंड है, उसका पानी कभी भी नहीं सूखता। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर तीर्थ स्नान करने आते हैं। शादीशुदा औरतें अपनी गृहस्थी की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर मनोकामनाएं करने आती हैं और ऐसे दिए जलाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ सावन के महीने में और मकर संक्रांति के दिन होती है। ये है सीताराम जी का मंदिर और दूसरी साइड में है श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर। तो अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, ऊपर से सीधा ऐसे 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 नीचे आके यहाँ पे ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है ये। सो गाइस नाउ आई एम आउट ऑफ द मेन गेट। सो बेसिकली हम लोग पूरा गलत आए हैं। So basically we did not know that there is another route which actually takes you straight to the temple via a vehicle and you don't really have to walk that ascent and descent thing. So we just realized that you can take this route, like this is
This is the opposite route from, like if you're coming from that side, this is the opposite side of the temple, and you go out from here, you reach out, you reach to the main road. So you'll get a lot of vehicles there, like a lot of rickshaws there, which you can take and go to the city. So you don't really have to climb back and then descend again. So yeah, I'm really happy about it because it is it's very sunny now. It's afternoon, and I did not really want to walk for around 2 kilometers, ascend, descend again. So I'm really happy that there is another route. Hi guys, so I'm outside Amer Fort now. So Amer Fort is basically on top, so that is Amer Fort, and to reach there you either have to hire a vehicle, that is, you can't really take a rickshaw there, so you'll have to take their jeeps, which are available here at a government price of 550 per jeep. So there are some 5 or 6 people which can go in it, or if you're not interested in hiring that jeep, then you can just walk there. So this is around 1 kilometer, I think, and I did not really want to spend 550 rupees, so I decided to walk up. And there are proper steps which are built, so I don't think there will be a problem walking upstairs. So let's see. So after coming a little inside the fort, I realized that there are these e-rickshaws which are available at the price of 100 rupees per person, which will take you all the way up, and it will drop you all the way up in the fort. So I think this is a better option than taking a jeep, especially if you are like less people, like if you are 2 or 3 people. I am at the Amer Fort now, and this is the main entrance of the Amer Fort. So the special thing about this beautiful gate that you see here is all these prints, they are made out of natural colors. So आमेर का किला, जिसे अंबर फोर्ट भी कहते हैं, जयपुर के मेन शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी में महाराजा मान सिंह जी ने ये किला बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनसे भी पहले यहाँ पर मीना कम्युनिटी के ट्राइबल लोग रहा करते थे। जब महाराजा मान सिंह जी ने 16वीं सेंचुरी में इस किले को बनवाया, उसके बाद राजपूतों का ये मुख्य निवास हुआ करता था। उसके बाद महाराजा जय सिंह जी और महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इस किले का कंस्ट्रक्शन लगभग 2 शताब्दियों में कंप्लीट किया। क्या आपको पता है कि आमेर को पुराना जयपुर भी कहते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि महाराजा सवाई जय सिंह जी ने अपना पॉलिटिकल बेस आमेर से शिफ्ट करके जयपुर में बनाया था और जयपुर को ही अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी। लेकिन उससे पहले आमेर ही उनका पॉलिटिकल बेस हुआ करता था, इसीलिए आमेर को पुराना जयपुर भी कहते हैं।
दूसरा फैक्ट ये है आमेर के बारे में कि महारानी जोधाबाई, जिन्हें हम पॉपुलरली जोधा अकबर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आमेर फोर्ट में हुआ था। कहने के लिए तो ये फोर्ट बहुत साल पुराना है, लेकिन आज भी इसकी दीवारों में उतना ही दम है और इसके आर्किटेक्चर में उतनी ही सुंदरता। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े और इतने सुंदर से महलों में जब राजा महाराजा रहते होंगे तो उनकी चाल ढाल, उनका रहन सहन आखिर कैसा रहता होगा। यहाँ पर आते समय आप क्या सोचकर आओगे इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से जाते समय आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि यहाँ के हर एक कोने में एक ऐसी कहानी छुपी होगी जिसके बारे में कभी भी कोई भी नहीं जान सकेगा।